morning, and today we are going to start what happens when metals react with acids, right? So what we know about metals is that when metals react with dilute acids, what they form? They form salt plus hydrogen gas. This is formed during chemical reaction. So I am starting with the first metal that we usually discuss, potassium, sodium. Okay, if you are going to react potassium with an acid, dilute acid like HCl, what will be formed? Potassium chloride plus hydrogen gas. बैलेंसिंग करते रहना है अपने आप. 2KCl, let's see. Okay, so this is potassium chloride which will be formed in the chemical reaction. If you react it with H2SO4, what will be formed? Potassium sulfate. पोटेशियम को आपने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया, what will be formed? dilute H2SO4 के साथ K2SO4 and हाइड्रोजन गैस, राइट. फिर से बैलेंसिंग कर देना है. 2, I think balanced, right. Same thing, the reaction will be very vigorous. It will react, potassium will react very quickly with HCl, H2SO4, and it will give salt and hydrogen gas. So these reactions are usually avoided in labs. While showing you reaction of metal with acid, the teacher don't usually take sodium and potassium because they are highly reactive metals. ऐसे sodium के साथ reaction क्या होगा? The same reaction, HCl gives NaCl plus hydrogen gas. So एक general equation which is what metal plus acid gives salt plus hydrogen gas, ये आपको पता होनी चाहिए. इसको भी balance कर देते हैं. 2 NaCl, here 2 balanced, no, so 2 sodium atoms, now it's balanced. तो ऐसे सोडियम, अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे, अगेन द सेम रिएक्शन, सोडियम सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस विल बी फॉर्म्ड व्हेन यू रिएक्ट सोडियम विद H2SO4. तो ये रिएक्शंस आपको समझ में आ गए होंगे. दे आर हाईली reactive metals, that is why they are not done usually done in lab. अब हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं शो करना एक्सपेरिमेंट्स इन लैब? मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सब लेके हम रिएक्शन बच्चों को दिखा देते हैं. लाइक मैग्नीशियम, if you have magnesium ribbon, right, and you add HCl to it, dilute HCl, तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम क्लोराइड will be formed along with the evolution of hydrogen गैस. ये सारे रिएक्शंस कैसे हैं? दे आर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस. अगर आप पहले टेम्परेचर नोट करें, आपने HCl डाला है और आपने टेम्परेचर नोट किया, उसके बाद मैग्नीशियम रिबन जब आप डालेंगे तो व्हाट यू विल सी दैट बबल्स स्टार्ट्स कमिंग आउट एंड द रिएक्शन स्टार्ट्स अकरिंग. सो मैग्नीशियम क्लोराइड इज फॉर्म्ड. 2HCl बैलेंस कर देते हैं. 2HCl, राइट. सो इट इज बैलेंस्ड नाउ. ऐसे ही कैल्शियम भी रिएक्ट करेगा विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड इट विल फॉर्म व्हाट? कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2 एंड हाइड्रोजन गैस. अब इसमें ये बोला है ये दो मेटल्स जो है हमें अवॉइड करने हैं और आपको कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करनी है. यू हैव टू टेक few metals in a test tube and add dilute HCl to it, and you have to observe what? Where the bubbles are, the maximum, where did you find the bubbles maximum, and second thing, in which case did you find the maximum temperature, यानी बहुत ज़्यादा हीट इवॉल्व हुई. तो उसका मैं आपको शो कर देती हूँ. So what we need to have actually, we will take few samples of metals like magnesium, aluminium, zinc, iron, copper, and you need to clean these samples of metals with the help of sandpaper so that no impurity, no metallic oxide layer should be there. Like aluminium के केस में Al2O3 deposit हो जाता है naturally. आपने भी पढ़ाई है, अभी 2 वीडियोस पहले मैंने आपको समझाया था that Al2O3 is formed naturally, राइट. तो Al2O3 की लेयर आपको हटानी होगी, अदरवाइज द रिएक्शन विल बी स्लो इनिशियली, देन यू विल फाइंड हाइड्रोजन गैस बबल्स स्टार्ट्स कमिंग आउट. सो व्हाट वी हैव टेकन मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन एंड कॉपर आफ्टर क्लीनिंग, एंड वी उससे पहले हमने वी एडेड डाइल्यूट HCl टू इट, राइट. जब आप इसमें डाइल्यूट HCl डालेंगे तो इट हैज़ बीन आस्क्ड टू नोट डाउन द टेम्परेचर. आपने डाइल्यूट HCl डाला, उसके बाद आपने मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, ऐसे सब में आपने ये इसमें टेस्ट ट्यूब्स को हाफ फिल्ड कर दिए विद
dilute HCl. Then what will you observe? That in case of magnesium, you will see lots of bubbles coming out, right, in the coming in the test tube. These are the bubbles of hydrogen gas which is produced during the reaction. We know that when magnesium will react with HCl, it will form what? Magnesium chloride along with the evolution of हाइड्रोजन गैस. लेकिन इस नोटिस किया गया कि हाइड्रोजन गैस सबसे ज़्यादा किस में प्रोड्यूस होगी? इन केस ऑफ दिस मैग्नीशियम मेटल. फिर हल्के हल्के रिएक्टिविटी कम होती जाएगी. मैग्नीशियम मोर रिएक्टिव, देन एल्यूमिनियम, देन जिंक, देन आयरन. आयरन के केस में आप देख रहे हैं बबल्स बहुत कम है. एंड कॉपर में यू आर नॉट फाइंडिंग एनी बबल. विद डाइल्यूट एसिड HCl H2SO4 के साथ आप अगर ये मेटल्स को रिएक्ट कराएंगे तो कॉपर आप देखेंगे कि कॉपर विल नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl और H2SO4. टेम्परेचर इस केस में मैक्सिमम होगा. बबल्स भी सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे इन केस ऑफ मैग्नीशियम मेटल. सोडियम और पोटेशियम आपको मैं बता चुकी हूँ, इट इज़ टू बी अवॉइडेड. अदरवाइज मैक्सिमम बहुत केयर कॉशन के साथ ये एक्सपेरिमेंट्स करे जाते हैं, क्योंकि जैसे ही ये होगा तो हाइड्रोजन गैस विल कैच फायर, राइट. So this is about this activity. I think you understand. Now let me write down the reactivity series. Okay, what is the reactivity order of reactivity? And then I will discuss with you what the case of HNO3. आप सोच रहे होंगे HNO3 तो डिस्कस ही नहीं किया जा रहा. लैब्स में भी आप देखेंगे आपको जब हम लोग एक्सपेरिमेंट्स दिखाते हैं तो what HCl H2SO4 ज़्यादा यूज़ करते हैं. HNO3 इन रिएक्शंस को दिखाने के लिए नहीं यूज़ करते हैं, क्योंकि HNO3 इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग agent. This I will explain you later. First of all, let me write down reactivity series. This is the order of reactivity of different metals towards dilute HCl or dilute H2SO4. Potassium most reactive, then sodium, then calcium, magnesium, aluminium, zinc, iron, copper, mercury and silver, the metals that we have taken. तो तभी आप देखते हैं कि अगर आप ज्वेलरी यूज़ कर रहे हैं सिल्वर की, गोल्ड की, तो सिल्वर वैसे तो करोड हो जाता है थ्रू बिकॉज ऑफ H2SO4 जो ब्लैक H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस से रिएक्ट करता है सिल्वर मेटल एंड इट फॉर्म्स सिल्वर सल्फाइड, ओके, विच इज़ ब्लैक इन कलर. लेकिन वैसे आप देखेंगे सिल्वर एंड गोल्ड बोथ आर एक्सपेंसिव. इनफैक्ट गोल्ड इज़ मोर एक्सपेंसिव और प्लेटिनम तो उससे भी ज़्यादा. तो गोल्ड एक्सपेंसिव क्यों है? किस वजह से उसकी इतनी वर्थ है, इतनी वैल्यू है? क्यों? क्योंकि गोल्ड इज़ वेरी लेस रिएक्टिव. तो आप अगर ज्वेलरी पहनेंगे भी तो यू विल नॉट हैव एनी एलर्जी. रेयरली ऐसा होता है कि कुछ लोगों को गोल्ड से भी एलर्जी हो, वरना आप इजीली गोल्ड की ज्वेलरी पहन सकते हैं. सो इट इज़ अनअफेक्टेड बाय व्हाट? बाय ऑक्सीजन, बाय वाटर और बाय हम बहुत सारे घर में बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं जो बहुत माइल्ड एडिबल एसिड्स होते हैं या फिर बेसिस होते हैं. सो these metals are unaffected by acids, moisture, oxygen, so everything that is why they have high cost. और another thing कि metal में obviously metals जो भी present हैं they are present in limited amount. तो जितनी आप mining कर रहे हैं उतना ही आप देखते हैं उतना बहुत हैवी एक्सपेंसेस पे करने पड़ते हैं तब जाके इसकी माइनिंग होती है. गोल्ड जो एक्सट्रैक्ट किया जाता है फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट. So obviously it is present in limited amount, that is why its cost is very high. So this is about, now let us study HNO3. HNO3 में ऐसा क्या है? And then we will study कि नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ऐसा कौन सा मिक्सचर है जो कि बहुत ही करोसिव एंड फ्यूमिंग लिक्विड बनाता है, which can dissolve gold and platinum and silver in fact. HNO3, dilute HNO3, it is a strong oxidizing agent. Oxidizing agent. Oxidizing agents are the one which provide oxygen, right? And they itself get reduced. जब ये strong oxidizing agent है तो ये अपने आप क्या हो जाएगा? It will be reduced. और ये reduced किस में हो जाता है? 2 oxides of nitrogen dioxide, nitrogen monoxide, dinitrogen oxide, इसमें ये अपने आप रिड्यूस हो जाता है, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देता है. अभी किसको ऑक्सीडाइज करता है इन रिएक्शन? दिस वी विल स्टडी. देखिए जैसे सपोज यू हैव कॉपर, ओके, और कॉपर हमने देखा डाइल्यूट HCl H2SO4 के साथ रिएक्ट नहीं करा, आपने HNO3 के साथ इसको रिएक्ट कराया डाइल्यूट HNO3 के साथ, राइट? तो इट विल फॉर्म व्हाट? कॉपर नाइट्रेट
ये तो हम समझ सकते हैं, कॉपर नाइट्रेट बनेगा। यहाँ पे आइडियली हमने जैसा पढ़ा था कि मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स एंड फॉर्म दे फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन, लेकिन हाइड्रोजन नहीं बनेगा। जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगी इट विल बी ऑक्सीडाइज्ड बाय व्हाट, ऑक्सीडाइज्ड टू वाटर, वाटर बन जाएगा। और दूसरा यहाँ तो ये क्या बन गया, वाटर बन गया और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन गई। अभी बैलेंस कर लेते हैं इक्वेशन। यहाँ पे 4 लगा दीजिए, Cu + 4HNO3, और यहाँ पर आप लगाएंगे CuNO3 ट्वाइस, एंड हियर व्हाट यू राइट 2H2O, एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में ये 2 आ जाएगा। नाउ यू कैन चेक द बैलेंसिंग पार्ट। तो बच्चों समझ में आया, हाइड्रोजन दैट इज प्रोड्यूस्ड इन द रिएक्शन is oxidized to what? Water. Because of what? Nitric acid, HNO3 की वजह से। और HNO3 अपने आप में किस में रिड्यूस हो गया? टू ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो आपको क्या मिला? हाइड्रोजन गैस इज नॉट प्रोड्यूस्ड व्हेन मेटल्स आर रिएक्टेड विद नाइट्रिक एसिड। समझे? नाइट्रिक एसिड के साथ जब आप रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन गैस विल नॉट बी प्रोड्यूस्ड। ये आपको याद रखना है, H2 गैस विल नॉट बी प्रोड्यूस्ड। लेकिन आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और आप एक्सेप्शंस ना पढ़ें, ये तो बहुत ही मुश्किल चीज़ है। तो इसमें भी आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। 2 मेटल्स याद रखने हैं कि वो रिएक्ट जब HNO3 के साथ करते हैं विद वेरी डाइल्यूट HNO3, सो व्हाट दे फॉर्म, दे obviously salt is formed along with hydrogen gas. So what are the names of those metals? मैंगनीज एंड मैग्नीशियम। तो आप देखिए, इसका मैं रिएक्शन लिख के दिखा रही हूँ आपको। These are the 2 metals I have written equations for the 2 metals magnesium and manganese. ये याद रखना है, टू रिमेंबर, पॉइंट्स टू रिमेंबर में इसको आपको ये बिल्कुल याद रखना है अच्छे से व्हेन यू विल स्टडी मेटल्स, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड। ये बहुत दोनों मेटल्स के एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। दैट व्हेन मेटल मैग्नीशियम रिएक्ट विद वेरी वेरी डाइल्यूट एसिड HNO3, व्हाट विल फॉर्म? magnesium nitrate along with hydrogen gas, and similarly manganese, when it will react with very dilute HNO3, so it will form what? Manganese nitrate and hydrogen gas. Both there is a trick that you can remember that these 2 metals are starting with M. I'm just saying it depends on your memory also. Manganese और magnesium ही आपने पढ़ा है ज़्यादा M लेटर से, तो it is a trick कि आप याद रखिएगा। ये किससे ये reaction will happen, salt will be formed and hydrogen gas will be evolved in case of nitric acid. So we discussed dilute HCl, dilute H2SO4 and dilute HNO3. जिस केस में dilute HNO3 में हमें पता चला ना hydrogen gas will not be evolved. The reason is this thing that I have written, that HNO3 will oxidize hydrogen gas that is produced in the reaction to water, and HNO3 itself gets reduced to the oxides of nitrogen, here in this case NO2. Right, now let us discuss aqua regia. Very briefly I will discuss aqua regia is what? Aqua regia is a freshly prepared mixture of concentrated HCl, hydrochloric acid and concentrated nitric acid in the ratio of 3:1 by volume. Freshly prepared mixture, it is also known as what? Royal water. Royal water, as it has an ability to dissolve silver, gold, platinum into it. It is also known as royal water. It is a fuming and corrosive liquid. तो ये कैसा मिक्सचर होता है? फ्यूमिंग एंड करोसिव इन नेचर, धुआं सा ऐसा आपको निकलेगा, दिखेगा। ठीक है, तो अब ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है विच आई वांट टू गिव यू कि हाउ एक्वा रेजिया dissolves gold or platinum into it, right? So I'm writing equation for that. This is the an equation for aqua regia, that when aqua regia is prepared 3:1 volume, मैंने बताया आपको 3 parts of HCl and 1 part of HNO3, right? Concentrated. So what is formed in the reaction? Nitrosyl chloride, water, and this is nascent chlorine. न्यूली बॉन्ड इसका मतलब होता है nascent chlorine. स्टेबल तो होती नहीं है, तो ये जब स्टेबल नहीं होगी, इट विल रिएक्ट विद, यू नो व्हाट,
इट हैज़ अ टेंडेंसी टू रिएक्ट विद गोल्ड सिक का एग्जाम्पल ले लेते हैं। गोल्ड के साथ रिएक्ट कराता है, रिएक्ट करता है ये किसका, क्लोरीन, और क्या बनाता है, गोल्ड क्लोराइड बन जाता है। AuCl3, Au इज द सिंबल फॉर गोल्ड, तो क्या बन गया बच्चों, यहाँ पे आप बन गया हमारा गोल्ड क्लोराइड, राइट। ऐसे ही अगर ये प्लेटिनम के साथ आप रिएक्ट कराते हैं, प्लेटिनम को आप डिसॉल्व करना चाह रहे हैं, और ये फिर ट्रेस बैक भी कर लिया जाता है, ऐसा नहीं है कि ये उस सोल्यूशन में रहेगा, इसका प्रॉपर प्रोसेस होता है। गोल्ड डिसॉल्व हो गया, यस प्लेटिनम डिसॉल्व हो गया, उसके बाद इसको ऑब्टेन भी आप कर सकते हैं बहुत आराम से, तभी तो गोल्ड को डिसॉल्व करेगा, राइट। तो आपने प्लेटिनम को इसमें रिएक्ट कराया विद ऑब्वियसली 4Cl, तो क्या बना, PtCl, PtCl4, ओके। ये हमारा क्या बन गया, प्लेटिनम क्लोराइड। प्लेटिनम बहुत इजीली ऐसे बनाता नहीं है कंपाउंड्स, आप इसके बारे में आगे पढ़ेंगे बड़ी क्लासेस में, कॉम्प्लेक्सेस कुछ भी ये बनाएगा तो वो कैसे बनाता है, बस अभी इसके लिए इतना सफिशिएंट है। तो आप जब कभी भी अगर किसी को गोल्ड डिसॉल्व करना है, आपने कुछ भी शाइनिंग पॉलिशिंग के लिए दिया, और अगर वो ज्वेलर बहुत ही ऑनेस्ट नहीं है, तो व्हाट दैट पर्सन कैन डू, एक्वा रीजिया फटाफट बनाया मिक्सचर, उसमें इसको गोल्ड ज्वेलरी को डाल दिया, तो सम पार्ट ऑफ द गोल्ड विल बी डिसॉल्व्ड इन व्हाट, इन दैट एक्वा रीजिया, आपको पता भी नहीं चलेगा, यू विल हैव वेरी अगेन द फ्रेश गोल्ड, जो चेन बैंगल कुछ भी दिया आपने वो बिल्कुल बहुत शाइन कर रही होगी अच्छे से, लेकिन उसमें कुछ अमाउंट उसमें एक्वा रीजिया की वजह से पहुंच गया हो उसके पास सोल्यूशन का। तो इट्स बेटर टू वे योर ज्वेलरी, अगर आप किसी को पॉलिशिंग के लिए दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, तो आप उसके पहले अपनी ज्वेलरी को ज़रूर वे करवाइए, उसके बाद फिर देखिए कि कितना वेट है, राइट। सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ एक्वा रीजिया, इसका प्रॉपर प्रोसेस होता है जिसके थ्रू ये जो है बाद में ऑब्टेन भी कर लिया जाता है। हाँ, हमने इक्वेशंस जो है मैंने कुछ अवॉइड करी थी, अगर आप एक बार इक्वेशंस और मैं लिख देती हूँ इफ़ यू वांट। So these are the few reactions that we have studied apart from the reaction with nitric acid, right? Potassium reacts with HCl, forms potassium chloride with hydrogen gas. Sodium with HCl, sodium chloride along with hydrogen gas. Calcium HCl will give what? Calcium chloride and hydrogen gas. Magnesium reacts with hydrochloric acid, will form magnesium chloride. Similarly, you can do for H2SO4 also. You can write equations for H2SO4. Initially, I had shown you, okay, when the video had started, I had shown you the reaction with H2SO4 also. Aluminium react with hydrochloric acid, AlCl3 plus hydrogen. So what I want you to remember is to know balancing very well. Now you understand the scope of balancing, that everywhere when you are writing equations you need to balance equations, obviously. So you can start writing by, what I want you to do is to write K plus HCl gives KCl plus H2. This is the general equation that you know. Then balance it by your own and check your answers in the end. यहाँ पे आयरन 2 क्लोराइड 2 वैलेंसी वाला आयरन लिया, राइट। सो दैट इज वाई इट विल बी FeCl2। तो ये इक्वेशंस आप लास्ट में ज़रूर अपने आप चेक किया करिए कि वेदर द इक्वेशंस आर कमिंग आर बैलेंस्ड और दे आर अनबैलेंस्ड। तो आपको अभी भी स्टिल यू हैव टाइम, यू कैन प्रैक्टिस इक्वेशंस, राइट, फॉर बैलेंसिंग। So this is all about what happens when metals react with acids.